देखिए, उम्मीद तो शांति के लिए, शांति समाधान हम सब चाहते हैं। आपको पता है कि इस युद्ध के कारण हमारे देश पे काफ़ी असर पड़ा और हमारे भारत की रसोई पे भी असर पड़ा है। तो हमारे इंटरेस्ट क्या है? शांति ही है, समाधान ही है। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ हो गया कि ये युद्ध खत्म हो जाए और हम दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने डिसरप्शन हो चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी कम हो गया है। हमारे देश पे एक बहुत बड़ा प्रतिशत नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोनों वहां से आते थे, मतलब कतर से, बहरीन से, उस तरफ से, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आते थे। अभी आना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध चलता है तो नामुमकिन भी होता है कुछ दिनों में। दूसरी बात यह है कि हमारे करीब 1 करोड़ लोग पड़े हैं गल्फ राज्यों में, गल्फ देश में, और उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षिता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो युद्ध चलना उनके इंटरेस्ट में नहीं है और उनके काम में भी कुछ असर पड़ेगा। शायद कुछ लोग अपने काम को नष्ट करेगा, लॉस हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो कुछ वहाँ से आते हैं उसके उपयोग हमारे सिर्फ रसोई में नहीं, और ढाबा भी बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट में तकलीफ हो रही है, वो सब छोड़ दो, उसके अलावा हमारे फैक्ट्रीज में भी असर हो रहा है। आप शायद सुने होंगे कि सूरत में सेरेमिक फैक्ट्रीज बंद होना पड़ा क्योंकि उनके सप्लाई नहीं। हीलियम आते हैं वहाँ से, सल्फर आते हैं, फर्टिलाइजर हमारे कृषकों के, हमारे किसानों के लिए। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इस युद्ध का खत्म होना हमारे पूरे देश के हित में है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लेके आए, पाकिस्तान लेके आए या कोई और लेके आए, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम शांति चाहते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? Pakistan playing the role of mediator. In fact, yesterday the CWC has also passed a resolution regarding that. What's your opinion? I had to leave the meeting, unfortunately, before that resolution was passed. I've not seen the text yet. I had another public address. I'm overcommitted these days. I've just come back from 3 weeks of campaigning in Kerala. But I will say that as a general proposition, I do believe that India's interest is very much in terms of peace. I think we should monitor what's going on very carefully. I'm pleased that our government, our Prime Minister, Foreign Minister, Petroleum Minister, everyone is in touch with the leaders in that region, because that's in our interest to be. We cannot afford to be disengaged. We have to be very much actively involved. And I will say that we should absolutely hope that peace comes as a result of these efforts. As I said earlier in Hindi, I don't think there is any need to worry about who brings about the peace. Who brings about the peace won't matter if peace comes. If peace fails, on the other hand, I think we should analyze very carefully the reasons for that failure and see if there is any way that we can contribute to a different outcome in the future. Because as a country, India has such a fundamental interest both in peace and in ensuring that the overall order in our region doesn't break down. A vacuum is dangerous. It hurts us in other ways also. And I think that as a leading voice of the Global South, India is a responsible stakeholder in the process of constructing a viable regional and global order. And for that, we cannot afford to be passive. We can't just observe while fires are blazing in our neighborhood. We will have to play an active role, but it will have to be a carefully considered role, one where we examine for ourselves what is the most useful contribution we can make. Sometimes that useful contribution may truly be in silence. I've written that also earlier. But today, I think we are understandably more active in the region. 2 ministers are flying around. The Prime Minister is on the phone. All of this is very good. And I think we should see more. 3 ministers, I think, are actually in the region. I think we need to see much more of this, because that engagement is what keeps us viable and potentially able to play a larger role that we are not today in a position to play. शशि, क्या ये मीटिंग जो इस्लामाबाद में हो रही है, क्या उसको भारत में होना चाहिए था? आपको ऐसा लगता है? नहीं, भारत में तो इसमें ऑनेस्टली हमारे रोल बहुत अलग है। ये जो आप पूछे हैं, पाकिस्तान को हमने हमारे ख्याल में वॉशिंगटन के साथ जिस किस्म के रिश्ता है, वॉशिंगटन ने उनको ये मांगा है ये करने के लिए। और आपको शायद पता है कि कुछ आरोप भी आए हैं कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट भी लिख के दे दिया उनको, क्योंकि उसका हेडिंग था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। अगर आप और मैं भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कोई लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे ड्राफ्ट फॉर इंडियाज पीएम? और जो भाषा इस्तेमाल की है वो भी वॉशिंगटन वाली भाषा है।
कुछ फ्रेजेस है, कुछ लफ्ज है जो ट्रम्प साहब ने इस्तेमाल किया था कुछ घंटे पहले। तो इस किस्म के रोल जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस मामले में खेला है वो तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोस राज्य है, 900 किलोमीटर के बॉर्डर है, सीमा है उन दोनों देश में, और करीब 4 करोड़ शिया पाकिस्तानी हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पाकिस्तान है स्किन इन द गेम, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अलग किस्म का है। अगर कल ईरान में बिल्कुल जिस किस्म के हमला ट्रम्प साहब थ्रेटन कर रहा था अगर ये हुआ तो रेफ्यूजीज कहाँ आ जाएंगे, उनके ही राज्य पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो स्टेक है इस विषय पे हमसे अलग है। मैं इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखता हूँ पाकिस्तान के साथ, उनके यथार्थ अलग है, हमारे यथार्थ अलग है। देखिए एक संदर्भ एक विषय पे वो लोग शायद शांति दूत बनेंगे, अब तक हुआ नहीं ना, अब मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीजें उन्होंने की है जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है, यह क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जब गलती किए हैं, अगर आप कल शांति दूत की तरह आपको मानना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इस विषय पे नहीं, आपके जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है आपके देश में, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो नेताओं इधर उधर जाके नफरत वाले भाषण देते रहते हैं, उनको अरेस्ट करो, ये सब कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, बैंक अकाउंट्स को बंद कर दो। ये सब करने के बाद हम सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सचमुच आपके मन में कोई बदलाव आए हैं। लेकिन जब तक आप आज तक किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं दिए 2008 के विषय में, एक बार भी नहीं, तो इस हाल में आप ये भी सोचिए कि किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान शांति की देश है। अगर इस विषय पे वो लोग एक फैसिलिटेशन रोल खेले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा इतिहास वाइप आउट हो जाएगा, भूल जाएगा, और जो कुछ हुआ है हमारे देश के खिलाफ पिछले साल भी पहलगाम में जो हुआ है कि हम सडनली सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबूत है, हमारे पास है, दुनिया के पास है, और मेरे ख्याल में हम कभी वर्ल्ड के सामने तो यही प्रोजेक्ट हो रहा है ना कि तो उनकी तरफ से हो जाएंगे ना। आपको क्या चिंता है? हमारी जो कैपेबिलिटीज है आप इसको अंडर एस्टिमेट के दौरान में आप लोगों ने आपकी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को आइसोलेट किया था पूरी दुनिया में। अब आपको लगता है कि इस मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान फिर से दुनिया के मेन स्ट्रीम में आ रहा है और एक बड़ा मौका भारत में? देखिए इतिहास तो अनफोल्ड करते रहते हैं, एवोल्यूशन हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा, मैं आखिरी प्रश्न मुझे जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सब कुछ एक जीरो सम गेम देखना अच्छा नहीं है। अरे पाकिस्तान को ये करने दो, अगर शांति आए हमारे भी हित में है, हम चाहते हैं, लेकिन ये भी आप सोचिए कि इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे भूल जाएंगे। हम कहेंगे आतंकवाद या जो प्रश्न है हमारे मन में है, लेकिन शायद आज हम इसके बारे में बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इस मामले में कि कोई सफलता मिले देश को, दुनिया को, कि शांति आ जाए, समाधान आ जाए, राइट। तो इसके बाद जब सब कुछ हो चुका है और लोग तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच सकेंगे। लेकिन इस वक्त भारत को मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल खेलना चाहिए। ये मैंने लिखा कल भी या परसों भी, मैंने ये कहा कि हमारे देश का एक बड़ी मैच्योर देश है, हमारी जो इतने साल के इतिहास है, इतने बड़ी सिविलाइजेशन है, हम छोटे मोटे मतलब छोटे मन के लोग के जैसे बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त शांति के होने दीजिए, हमारे विषय तो बाद में आएंगे, लेकिन ये कब भूल नहीं जाएंगे हम, लेकिन आज उठाने की खास जरूरत नहीं, आज ये चलने दीजिए, पीस टॉक्स।